Today start my second class, Hindi spoken Sanskrit. So hurry up. Google Meet. Start my class. ঠিক আছে, আজকে সবার প্রথমে আগের দিনে দেওয়া যে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করে নেব। ঠিক আছে, তো প্রথমে প্রিয়াঙ্কাই বলুক। প্রিয়াঙ্কা, আমি যেটা জিজ্ঞেস করব সেটা হচ্ছে যে आगे दिने আমি কিছু अगले दिन मैंने जो सरवर्ण दिया था उस सरवर्ण से जो शब्द मैंने बताया था उस शब्द से मैंने बोला था कि एक एक करके वाक्य बनाना है, तो हुआ नहीं है। आप लोगों ने बताया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम बता देते हैं। তো যে যে বাক্যটা করেছে বাংলাতে সে সেগুলো শুধু বলবে, আমি তার হিন্দিগুলো করে যাব, একটু টাইম লাগবে, বাট সে আমি তাকে বলবো খাতা করতে বলেছিলাম, খাতা নিশ্চয়ই করা হয়েছে, সেই খাতাতে একটু নোট করে নেবে। তো হ্যাঁ, বেশ ঠিক আছে। তাহলে আনার দিয়ে কি করেছিল এবারে বল। আচ্ছা, অনারের বাংলাটা কি আরেকবার বলো। অনারের বাংলা যদি জিজ্ঞেস করিস তাহলে ওটা আনারস হবে। হ্যাঁ, আনারস। আনারস। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। আর ঔরত? ঔরত औरत तो মেয়ে, মহিলা। মহিলা। আচ্ছা, মেয়ে। ঠিক আছে। আর এক্কা মানে ওই ঘোড়ার গাড়িটা? হ্যাঁ, এক্কা মানে ঘোড়ার গাড়ি। ইয়েস ইয়েস ইয়েস। এক এক করে বলে যাও। ঠিক আছে। আনার দিয়ে কি করেছিলে? আমি ওই শব্দ দিয়ে কিছু লিখিনি, আমি আমার মন থেকে কিছু বাক্য রচনা করে লিখেছি। আচ্ছা, অনার দিয়ে কিছু করেছিলে? অনার দিয়ে, অনার দিয়ে, অনার, অনার সে কুছ? না, ওই শব্দ দিয়ে না, আমার মন থেকে আমার মনে হলো কিছু বাক্য লিখি আর সেইটাই লিখেছিলাম। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে অনার থেকে যদি না করে থাকে তাহলে আমি বলে দিই, অনার থেকে করলে মুঝে अनार खाना पसंद है, এটা লেখা যেতে পারে। মুঝে अनार खाना पसंद है এটা লেখা যেতে পারে। ঠিক আছে, যদি अनार দিয়ে কিছু বাক্য, मुझे अनार खाना पसंद है, ठीक है। आम দিয়ে কি হবে? হ্যাঁ, अनार দিয়ে मुझे अनार खाना पसंद है। আচ্ছা। आम দিয়ে কিছু করেছিলি? आम দিয়ে आपने कुछ किया था? आपने खाना पसंद है, पसंद है। आम मुझे पसंद है। হ্যাঁ, আম দিয়ে কি করেছে? আম দিয়ে আচ্ছা, প্রিয় কি হবে? প্রিয় যে আমার হচ্ছে প্রিয় ফল আম। अच्छा, এটা কি প্রিয়? हाँ बोले दीजिए। मेरा पसंदीदा फल आम है। पसंदीदा, मेरा पसंदीदा, हाँ पसंदीदा, पसंदीदा। प्रियोटा माने হচ্ছে হিন্দিতে पसंदीदा। मेरा पसंदीदा फल आम है, ठीक है। हिंदी में भी आम बोला जाता है, आम। खाली लिखने का जो ट्राम है उसको देवनागरी स्क्रिप्ट ने आम लिखना है, बस। मेरा पसंदीदा फल आम है, ঠিক আছে। আচ্ছা, ইমলি দিয়ে কি হবে? ইমলি দিয়ে, हाँ, इमली দিয়ে क्या होगा? আচ্ছা, এই যে চাটনি বলে ওইটার কি হবে? ও আচ্ছা, কি বল 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 বল। যে মুঝে তেঁতুল, मुझे इमली হচ্ছে বহুত পছন্দ। हाँ हाँ, ठीक है। देखो, চাটনি, চাটনির ক্ষেত্রে
এটা বলে দিয়ে মানে এই তেঁতুলের চাটনি। হ্যাঁ, তেঁতুলের ও চাটনি। বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে। मुझे इमली के बना हुआ जो चटनी भी चटनी चटनी এইভাবে উচ্চারণ করে, ঠিক আছে। চাটনি চাটনি যেরকম এরকম আমরা উচ্চারণ করছি, বানানটা লেখার সময় চারটা দন্তের দিকে চাটনি এরা হয়ে যায়। আমরা বাংলায় চাটনি বলি তো চাটনি বলি কথাটা, ঠিক আছে। ওটা হিন্দিতে चटनी चारटा दंतना दिखे चटनी हो जाता। मुझे इमली की चटनी खाना बहुत पसंद है, ठीक है। मुझे इमली की चटनी खाना बहुत पसंद है, এরমভাবে বলা চাটনি। চটা আকারটা আসবে না, বাংলায় যে আকারটা আসে হিন্দি में वो आकार नहीं आएगा, ঠিক আছে, বোঝা গেল। हाँ मुझे इमली का चटनी बहुत पसंद है। हाँ हाँ चटनी চারটা দন্তের দিকে আকার আসবে না কিন্তু, আমি বারবার বলছি। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ আকার আসবে না কিন্তু, বাংলায় যেটা চাটনি হয় হিন্দিতে কিন্তু আকার দিয়ে চাটনি ফাটনি বলা যাবে না, চাটনি চা অকার, চয়ের পর অকার, চারটা দন্তের দিকে। আচ্ছা ইক ইক দিয়ে কি হবে, ইক से क्या होगा। एक हाँ আচ্ছা, ইক हाँ হচ্ছে সুস্বাদু। সুস্বাদু কি হবে? ওকে সুস্বাদু ওকে বলছি বলছি তো, বাংলার বাক্যটা বল। হুম আর খুব সুস্বাদু ফল। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बोलছি एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है। स्वादिष्ट स्वादिष्ट जब होता है ना हिंदीते ये जो सुस्वादु, बांग्लाয় যেটা সুস্বাদু, আখ খুব সুস্বাদু ফল, এটা বাংলায় বললে। और हिंदीते যখন इसको हम बोलेंगे वह हो जाएगा एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है, ठीक है। एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है, ठीक है, एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है। अब এবারে তারপরে বলতে হবে উল্লু দিয়ে। উল্লু দিয়ে কি হবে। बहुत ही हाँ एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है। अच्छा अच्छा उल्लू स्वादिष्ट 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 फल। লিখনে কে বাদ যেটা খাতায় লিখছি সেই লেখাটা হয়ে যাওয়ার পর ওটা পরে আমাকে একবার হোয়াটসঅ্যাপ করে দিয়ে আমি দেখে নেব, তার কারণ হচ্ছে ভুলভ্রান্তি হতে পারে, আমি চেকিং করে পরে বলে দেবো ওটা, ঠিক আছে। পাঠিয়ে দিবি হোয়াটসঅ্যাপে যেটা হিন্দিতে ठीक है লিখছিস। ठीक है। उल्लू से क्या होगा बताओ अब। हाँ ठीक है पाटिए। রাত্রির পেঁচা রাত্রি দেখতে পায়। রাত্রি কি হবে? রাত্রি ও আচ্ছা 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 বলে দিচ্ছি, দেখা যায় কি হবে? अच्छा বলে দিচ্ছি বুঝতে পেরেছি। शाम के वक्त शाम के वक्त शाम के वक्त उल्लू दिखाई देता है। ওই রাত্রিবেলায় পেঁচা দেখা, হ্যাঁ वक्त নয় वक्त। কি শাম কি বলনা? शाम के वक्त वा কয়তয়, शाम तालबसाकार मा शाम के कयकारे के वक्त वा कहता वक्त, शाम के वक्त उल्लू दिखाई देता है। उल्लू स्पेलिंग पर भी हस्सू लैला दीर्घु, उल्लू का स्पेलिंग ऐसा होगा हस्सू लैला दीर्घु, उल्लू दिखाई दहसी खाक। हाँ बा कहता, हाँ बा कहता है यस बा कहता है, हाँ बा कहता है यस बा कहता, हाँ हाँ। शाम के वक्त उल्लू दिखाई देता है, दिखाई देता है। शाम के वक्त उल्लू दिखाई दहसी दिखाई देता है, মানে সন্ধ্যের অন্ধকার হলেই আমরা গাছে আমরা দেখতে পাই পেঁচাকে, ঠিক আছে। ओना से क्या होगा, ओना ओना উল দিয়ে সোয়েটার বানানো হয়। সোয়েটার কি হবে? अच्छा 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 বানানো কি বলেছি उनसे उनसे सर्दी की कपड़े, उनसे सर्दी 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 কথাটা এই কারণেই আসছে,
উনটা আমরা সাধারণত উলের যে জিনিসগুলো এগুলো তো আমরা শীতকালে ব্যবহার করি, তাহলে এবার শীতকালটাকে হিন্দিতে বলা হয় सर्दी का मौसम। এই কারণে এটা বলা হবে ऊन से हम सर्दी की कपड़े सिलाई करते हैं। सिलाई, সিলাই মানে কি সেলাই করা, বাংলায় যেটা সেলাই করা, ইংলিশে এটা স্টিচিং, ঠিক আছে। उनसे हम सर्दी की सिलाई करते, सर्दी की कपड़े की सिलाई करते हैं। सर्दी की कपड़े कपड़े सर्दी की कपड़े कपड़े सिलाई। हाँ सिलाई, दंत से सिला का दीर्घी। सिलाई करते हैं। करते हैं, हाँ यस 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 करते हैं। हाँ अब बताओ ऋषि से, ऋषि ঋষি বসে ধ্যান করছে। ঋষি ধ্যান করছে। হ্যাঁ, ঋষি গাছের তলায় বসে ধ্যান করছে। अच्छा ऋषि गाছের তলায় বসে ধ্যান করছে। अच्छा ऋषि पेड़ की नीचे बैठकर मग्न हुआ है, ध्यान पे मग्न है, ठीक है। उनकी ध्यान पे मग्न है, आप बोल सकते हो, ठीक है। ऋषि पेड़ के नीचे ध्यान पे मग्न है। কিসের নিচে বললে? আগে বললে। पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे মানে গাছের নিচে বসে আছে না, যে पेड़ के नीचे, पयका डयशनरा, पेड़ के नीचे। পয়কা রোদ। पयका डयशनरा, डयशनरा র নয়, বয়শনরা নয়, ডয়শনরা। हाँ ঠিক আছে। हाँ हाँ ऋषि पेड़ के नीचे बैठ कर ध्यान कर रहे हैं। हाँ কি बैठकर नहीं কি একটা বললে? बैठ कर ध्यान, ध्यान 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 धैर्य बोला का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कर कर रहा है बोले। कर रहे हैं, कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। हाँ एक का से बोलो, एक क्या? গাড়ি কি হবে? হ্যাঁ গাড়ি, আমার একটা গাড়ি। আমার একটা গাড়ি আছে না, কি বলতে চাইছিস বল, বাক্যটা ঠিক করে ক্লিয়ার করো। क्या होगा বাক্যটা কি, বাংলায় কি বাক্যটা কি বলতে চাইছিস? আমার একটা গাড়ি আছে। হ্যালো, আমার একটা গাড়ি আছে, তাহলে আমি আমার একটা গাড়ি আছে বলেই বলছি। मेरे पास एक्का गाड़ी, एक्का एक्का माने घोड़ार गाड़ी, ठीक है। मेरे पास एक्का गाड़ी है, एक्का गाड़ी है, ठीक है। अब बोलो ऐनक दिया, ऐनक। এটাও তো লিখতে পারি, मेरा एक्का बहुत पसंद है। मुझे एक्का, मुझे তখন বলতে হবে मुझे, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, मुझे एक्का गाड़ी बहुत पसंद है। मुझे তখন আমার, আমার एक्का गाड़ी पसंद हो, मुझे एक्का गाड़ी बहुत पसंद है, ठीक है, तब होगा। अब बताओ एनक से क्या होगा? एनक बहुत पसंद है। हाँ एनक ऐनक चश्मा। चश्मा।
বাংলার বাক্যটা কি করতে চাইছিস বল। हम्म, हम्म, मेरा হুম चश्मा बहुत पसंद मेरा वही ना হুম पसंद है। मुझे मेरा बोलना হবে না ক্ষেত্রে मुझे मुझे ऐनक पसंद है मुझे मेरा मुझे मेरा ऐनक बहुत पसंद है বলা যেতেই পারে কারণ আমার আমার নিজের মানে চশমাটা খুব পছন্দ ঠিক আছে তো मुझे मेरा ऐनक बहुत पसंद है এটা বলা যেতেই পারে ঠিক আছে তো ऐनक মানে তো অ্যাকচুয়ালি চশমাকেই বলাবে এবার চশমা এখন বিভিন্ন রকমের হয় মানে चश्मा जो होता है यानी कि ऐनक जो होता है बहुत तरीके का होता है एबार देखो बहुत तरीके का होता है कि मतलब क्या है देखो कभी कभार क्या होता है एक इंसान को अपने आँखों की प्रॉब्लम के लिए उनको ऐनक पहनना पड़ता है उसका प्रॉब्लम अलग है अगर कोई इंसान अपने गर्मी की वजह से बाहर निकलने से बहुत धूप लगता है गर्मी की वजह से जो ऐनक हम पड़ते वो ऐनक अलग है तो बहुत तरीके का ऐनक होता है ठीक है एबार बोला ओल दिया ओल से क्या होगा ओल ओल खेले गला धरे की होगा। अच्छा ओल खेले गला धरे ओल खाने से गले में खुसखुस होता है खुजली गले में खुसखुस होता है खुसखुस होता है जैसे कि ये ओल खाने से गले में खुसखुस होता है जैसे कि गलाয় खुसखुस माने गलाটা কীরকম खुसखुस कर ओल खाने से गले में खुसखुस होता है गले गल हाँ यस अब औरत से बताओ औरत তারপর মহিলা हाँ औरत মহিলা আমি রাস্তায় আজকে একজন মহিলাকে দেখলাম যিনি চোখে দেখতে পান না। अच्छा मैंने आज रास्ते में एक ऐसी औरत को देखी मैंने मैंने आज रास्ते पर एक ऐसी औरत को रास्ते पर एक ऐसी औरत को देखी जो अपने आँखों से देख नहीं सकती है কি একবার বলো কত দূর হয়েছে বল কত औरत मैंने आज रास्ते पर मैंने आज रास्ते हाँ বল क्या हुआ কি হলো বল কত দূর কোথায় হয়েছে मैंने आज रास्ते पर हाँ मैं एक ऐसी औरत को देखी एक ऐसी औरत को देखी देखी जो अपने आँखों से आँखों से दिख नहीं पाती है दिख दैसी खा दिख नहीं पाती है नहीं पाती है अच्छा अब अंगूर से बताओ अंगूर मेरा बहुत पसंदीदा फल अंगूर है। मेरा बहुत पसंदीदा फल अंगूर है ठीक है होगा कोई दिक्कत नहीं है अब आहा से मैंने बोला था कि प्रातः और अतः ऐसा शब्द होता है तो এই দিয়ে কি বাক্য গঠন করেছো इससे क्या वाक्य गठन आपने किया है बताओ आहा आहा अगर प्रातः या अतः से आपसे कोई वाक्य बनाने के लिए बोला जाए तो आप क्या बताओगे
ওটা করতে পারিনি। अच्छा ठीक है, देखो ওদের मैं प्रातः 6 बजे उठती हूँ। मैं प्रातः 6 बजे उठती हूँ, ठीक है। এতে আর বেশি কিছু না। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা, হ্যাঁ বল 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 বল, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है बताओ। ওইটা যে আমি লিখেছিলাম একটা, যে ওকে, मैं সকাল 6 बजे से उठती हूँ, এটা আমি লিখেছিলাম। কি লিখেছিলি বল। मैं সকাল 6 बजे से उठती हूँ। अच्छा मैं, না এটা লিখতে হবে मैं सुबह के 6 बजे उठती हूँ, मैं सुबह के 6 बजे उठती हूँ, এটা লিখতে হবে सुबह के 6 আচ্ছা बजे उठती हूँ, ঠিক আছে। কারণ সকালবেলায় কটায় উঠছে সেটা ঠিক করে বলতে হবে, मैं सुबह के 6 बजे उठती हूँ, ঠিক আছে। আচ্ছা 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 ঠিক আছে, এবার 6 বাজে সেটা তাহলে হবে না তো, সেটা হবে না না তো। সে লেখা দরকার নেই, मैं सुबह के 6 बजे उठती हूँ, उठती हूँ। मैं 6 बजे उठती हूँ, হুম ঠিক আছে। এবার প্রিয়াঙ্কা, আমার বাড়ির পাশ দিয়ে তারকেশ্বর নদ বয়ে গেছে। আমার বাড়ির পাশ দিয়ে দ্বারকেশ্বর নদী, সেক্ষেত্রে হবে मेरे घर के पास से दारकेश्वर नदी बह गई है। मेरे पास से, नहीं नहीं, मेरे घर, हाँ मेरे घर के पास से ही दारकेश्वर नदी बह गई है, बह गई है। मेरे घर के पास से ही, मेरे घर के पास से ही, पास से ही, मेरे घर के अच्छा। पास से ही द्वारकेश्वर नदी बह गई है। द्वारकेश्वर नदी हाँ बह गई है, हाँ हाँ বয়ে গই है। हाँ हाँ। হ্যাঁ, और কিছু আছে? আমি ঘুরতে যেতে খুব ভালোবাসি। मुझे घूमना बहुत पसंद है। मैं না আমি ঘুরতে ভালোবাসি মানে, मुझे घूमना बहुत पसंद है, আমি শুনে নিয়েছি। अच्छा मैं घूमना, मैं ना, मुझे 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 घूमना बहुत पसंद है, मुझे घूमना बहुत पसंद है। আর কিছু, হুম, আর কিছু নেই তো? আমি আঙুর এবং হ্যাঁ বল বল, আছে আছে এখন আছে, হ্যাঁ বল আছে বল আছে। বল বল বল, আচ্ছা। শুনছি। আমি আঙুর এবং পেয়ারা খেতে, আমি আঙুর এবং পেয়ারা খেতে খুব ভালোবাসি। अच्छा बोलছি, मुझे अंगूर नहीं, मुझे अंगूर और পিয়ারাটার এই মুহূর্তে হিন্দিটা আমার মনে আসছে না, বাস मुझे अंगूर और যে পিয়ারার হিন্দিটা আমি বলে দেবো দেখে, ঠিক আছে, बाद में बता दूंगा आपको। तो मुझे फलগুলো नाम लेखाর পর ও खाना बहुत पसंद है, मुझे वो फल মুঝে আঙুর, তারপর अंगूर और मुझे अंगूर और लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो है पियारा हिंदी लिखना पड़ेगा। हिंदी लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि बहुत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, खाना बोलते হবে না, ফলগুলো যেহেতু পছন্দ সেগুলো बहुत पसंद है বলে দিলেই হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা ओके আচ্ছা। अब बताओ। হ্যাঁ, আমার প্রিয় বন্ধু আমার বাবা। मेरा सबसे पसंदीदा दोस्त है मेरा पिताजी। मेरा मेरे मेरा सबसे मेरा सबसे चाहिदा दोस्त मेरा पिताजी है। पहला बोल रहे नहीं, मेरा सबसे चाहिदा, चाकार हादिगी दया का, मेरा सबसे चाहिदा दोस्त, हाँ चाहिदा दोस्त मेरे पिताजी है।
अच्छा। ओके। मेरे हाँ पिताजी है। हाँ। আর কিছু? আমার সমুদ্র খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ, আমার সমুদ্র খুব ভালো লাগে। मुझे मुझे समुद्र, मेरा नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं होगा। मुझे समुद्र बहुत अच्छा लगता है। मुझे समुद्र बहुत अच्छा लगता है। हाँ बताओ। সমুদ্র সমুদ্রই হবে। हाँ हाँ, वो ही होगा। अगर कुछ भी नया वाला है तो मुझे देख के बताना पड़ेगा, बस समुद्र होगा। हाँ बताओ। हाँ हाँ बताओ अब। और कुछ है क्या? বলছি দাঁড়া। हम्म, হ্যাঁ আচ্ছা। हम्म। আমি আমার রানীকে খুব ভালোবাসি। আমি আমার আমি আমার রানীকে খুব ভালোবাসি। मैं अपनी रानी को बहुत प्यार करती हूँ। মেরে मैं মেরে मैं अपने, মে हाँ मैं হুম ময় জফলাকা মে हाँ 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 हाँ, मैं মে अपनी रानी से बहुत प्यार करती अपने हूँ। रानी से। हाँ, अपनी रानी से हाँ, बहुत प्यार कर, मैं अपनी रानी से रानी से बहुत प्यार करती हूँ। रानी से हम्म, बहुत प्यार करती हूँ। हाँ 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 हाँ। और कुछ? प्यार हाँ प्यार करती हूँ। करती हूँ। हाँ 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 की हूँ। हाँ। আমি আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা করি। मैं सुबह मैं सुबह उठ के ईश्वर के पास मैं मैं सुबह मैं, हाँ मैं सुबह उठकर ईश्वर के पास प्रार्थना करती हूँ। सुबह उठकर हाँ, इसके पास प्रार्थना करती हूँ। सर के पास प्रार्थना करती हूँ। अब बताओ। देखिए लवर। हेलो हेलो हेलो। এই রে সেরেছে। I think network issue is very bad. नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बहुत परेशानी हो रही है। फटाफट आ जाओ यार।
ওকে। প্রিয়াঙ্কা, আর কোনো প্রশ্ন আছে? हाँ ওইটা তুমি একবার বলো না। मैं सुबह उठकर ईश्वर के पास प्रार्थना की करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ। আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে। ओके देख, এবারে আমি আজকে व्यंजन वर्ण आलोचनाয় আসছি। मैं आज व्यंजन वर्ण के बारे में कुछ बता रही हूँ। व्यंजन वर्ण एक ऐसा वर्ण है जो वर्ण है खुद ब खुद उच्चारण नहीं कर सकता है। तो जिस वर्ण को उच्चारण करने के लिए स्वरवर्ण की सहायता की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए क्या किया जाए? अब देखो, का से होगा तो कमल होगा, का माला। या कमल का मतलब क्या है? पद्दो। खा से क्या होगा? खाना। खाया का दंतना का खाना। अब खा से खाना है तो खाना से की खावर खावा। ग से हो रहा है गधा। गदा है का गधा। गधा की बांग्लाয় যেটা আমরা বলি গাধা। अब घ से बोल रहा है घड़ी। घ डायशनराय दीर्घी घड़ी। घड़ी घड़ी আমরা বাংলাতেও ঘড়ি কথা বলে থাকি, ওয়াচ। ओके। अब वहाँ से क्या हो रहा है? शंख। तालबस्सा वहाँ एक है शंख। या शंख बांग्लाয় আমরা বলি শাঁখ, শাঁখ বলি। च से क्या हो रहा है? चिल। च दीर्घिले चिल। चील की चील हमरा जानी बांग्लाते चील बोली। बंगाल में भी हम चील कहते हैं। ऐसे चील क्या मतलब है? चील पाखी। ठीक है। तो अब देखो छ से क्या हो रहा है? छाता। छ से क्या हो रहा है? छाता। छाता छाका तक छाता। छाता से क्या होगा? तो छाता से हम बोल सकते हैं कि छाता छाता है। बांग्लाते हमरा छाता ही बोली। या वर्गजा, या से क्या होगा? जहाज होगा। वर्गजा है का वर्गजा जहाज होगा। तो जहाज से क्या? जहाज दे जहाज ही बोली हमरा। सो झंडा। झंडा क्या है? हत्तला जाए अनुस्वार डा का झंडा। झंडा को हम बोल सकते बांग्लाয় पताका बोलते पारी हमरा। बांग्लाয় हिंदीते हमरा पताका बोली। हमरा तिरंगा की बोलते हैं हिंदी में। यहाँ से यहाँ पर जो पिक्चर है यहाँ से बोले जा रहे हैं यामसाई। यामसाई का यामसाई हम बोल सकते हैं जैसे कि जो आदमी लोग बाहर में हम देखते हैं ना, जो कचरा वगैरह लेकर जाते हैं, মানে যারা ওই সমস্ত ময়লার জিনিসপত্রগুলো যারা তুলে নিয়ে যায় না রাস্তা থেকে, আমরা দেখতে পাই। বুঝতে পারছিস? वो जो है उनको हम बोल सकते हैं कि यहाँ मसाई है। ठीक है। अब ट से सफाई कर्मी बोला जाती पारे। यस, बोला जाती पारे। यस। ट से बोला जा रहा है कि टब। এবার টব কি আমরা জানি আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে ফ্লাওয়ার ভ্যাস মানে ফুল রাখার জন্য যে টব, ঠিক আছে, ফুল বলা যায় যে টব আছে প্রত্যেকের বাড়িতেই। তো टब होगा। टब। अब ठ से ठेला। ठे का लगा ठेला। ठीक है। ठेला ठेला गाड़ी। तो ठेला गाड़ी যা আমরা গ্রামের বাড়িতে গেলে আমরা যে গরুর গাড়ি দেখতে পাই সেটাকে ঠেলা বলা যেতেই পারে। ठेला गाड़ी वो हो जाएगा। अब ड से क्या होगा? ड से हो जाएगा डमरू। डा मा रहसु। ड से हो जाएगा डमरू हो जाएगा। ठीक है। डमरू होगा। अब ढ से क्या होगा? ढ से हो जाएगा ढोलक। ढयो का ला का ढोलक हो जाएगा। अब ढोल डमरू जब डमरू माने, हाँ, ड से जैसे डमरू हो रहा है। डमरू माने হচ্ছে ডুগডুগি, যেগুলো বাচ্চারা যে ডুগডুগিগুলো রাখে না। हाँ, ঢোলক লেখার দরকার নেই, ওটা কটা বেরিয়ে গেছে। ঢ से ঢোল মানে আমরা যে পুজোতে যে আমাদের যে বাজানো হয় ঢোল, সেই ঢোলের কথাই বলা হচ্ছে ঢোল। ঢেউকালা ঢোল। अब णा से मध्यान्ह से क्या हो रहा है? हिरन। हसी रा मध्यान्ह हिरन होगा। अब त से क्या हो रहा है? तरबूज हो रहा है। तारा वैदीर्घ वर्ग जब तरबूज हो गया। अब थ से क्या हो रहा है? थ से हो रहा है थाली हो रहा है। थ का लदीर्घ थाली हो रहा है। अब तरबूज माने कि तरबूज যেটা বাংলায় বলি। णा से हिरन माने हरिण। আমরা হিরণকে বাংলায় বলি হরিণ, बट हिंदी में बोलते हिरन। हसी रा मध्यान्ह हिरन। ओके। सो देखो, अब थ से क्या हो रहा है? थाली हो रहा है। थ से थाली, तहकल्ला दीर्घ थाली हो रहा है। अब द से क्या हो रहा है? थाली का मतलब क्या है? थाली का मतलब थाला। द से क्या हो रहा है? दबात हो रहा है। द बयाकत दबात माने হচ্ছে কালির দোয়াত সেটা। ठीक है। अब ध से क्या हो रहा है? ध से हो रहा है धनुष, माने धनुक। धा दंतन से धनुक যেটা বাংলায় বলি। ना से क्या हो रहा है? नल हो रहा है। नाला नल हो रहा है।
प से क्या हो रहा है, पतंग हो रहा है। पतंग क्या है, घुरी। अब फ से क्या हो रहा है, फल हो रहा है। নলটা কি বললে? আমরা নল মানে আমরা নলকূপ বলতে পারি। নলকূপ যে আমাদের যে ট্যাপের যে কল ও নলকূপ না होता है ऐसे नलकूप মানে ট্যাপের যে কল সেগুলো আমরা বলতেই পারি। প से पतंग মানে ঘুড়ি বলবো। फ से फल মানে ফলই বলবো। ब से बकरी মানে ছাগল বলবো। ब का रदीर्घी बकरी মানে আমরা বাংলায় ছাগল বলবো। আর ভ से भालू भालू মানে আমরা বাংলায় ভাল্লুক বলবো। म से मछली माछा लदीर्घी मछली মানে বাংলায় আমরা মাছ বলবো। य से यज्ञ यज्ञ মানে যাগযজ্ঞ করা যেটা সেটা আমরা বলবো। र से रथ মানে रथी বলা হবে বাংলায়। ल से लट्टू, सिर्फ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ल टहलंत टदीर्घू होगा মানে লাট্টু, বাংলায় আমরা বলবো লাট্টু। ब से बक, ब का बक হিন্দিতেও আমরা বকই বলবো, বাংলাতেও বকই বলবো। আর তালবস্যা से सलगम, तलबस्सा लगाम सलगम गाजर, गाजर ओके। तो बोल सकता हूँ गाजर, गाजर मूली, गाजर बोल सकते हैं, ठीक है। तो सा से षटकोण, षटकोण सरकोण, षटकोण माने सरकोण যেটা বাংলায় বলি আমরা ষটकोण। मैथमेटिक्स का टर्म है सर्वभुज, বাংলায় सर्वभुज, सॉरी सर्वभुज। स से सपेरा মানে যারা সাপের খেলা দেখায় সপেরা, তাদেরকে বলে সপেরা। হ से हाथी, হায়াকা থদীর্ঘী হাতি। ষটকোণটা কি সরভুজ লিখবো? বলছি ষটকোণ, সরভুজ, সরভুজ, বলছি সরভুজ, কি সরভুজ? আচ্ছা সরভুজ। স से সপেরা যারা সাপের খেলা দেখায়। আর হ से हाथी বাংলায় হাতি। और खिया से क्षत्रिय, एक खिया से तैरप, देखो एक चीज़ अच्छी तरह से याद रखना, खिया तैरपला वर्गज ये जो संयुक्त है। और खिया जो है, खिया से क्षत्रिय, क्षत्रिय माने क्षत्रिय, क्षत्रिय के वाला है क्षत्रिय बांग्ला है। त्रा तैरपला से त्रिभुज होता है, त्रिभुज, त्रिभुज बांग्लाয় त्रिभुज बोली, हिंदीते त्रिभुज, इंग्लिश से আমরা ट्रायंगल बोली। और वर्गज यहाँ से होगा ज्ञानी, यानी कि नॉलेजेबल पर्सन। वर्गज यहाँ का दंतन देखिए ज्ञानी। अब डैसनर से क्या बोलते हैं, लोमरी, लयो का माँ डैसनर देगी लोमरी। लोमरी দিয়ে আমরা বলতে পারি আমরা নেকড়েবাগ, নেকড়েবাগ বলতে পারি আমরা, নেকড়েবাগ বলবো, নেকড়েবাগ लोमरी से। और ढैसनर से मेरक, मयका ढैसनरा का मेरक মানে হচ্ছে ব্যাং, ব্যাং, ঠিক আছে, ব্যাং। আচ্ছা এবার প্রিয়াঙ্কা মাইকটা একটু মানে স্পিকারটা একটু অফ কর, একটু স্পিকারটা অফ কর। ওকে রিন্টু শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যালো, আচ্ছা বেশ, আচ্ছা হ্যাঁ হ্যালো। তো বলছি তুমি যে বাক্যগুলো গঠন করেছিলে আজকের জন্য, হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই বলো, এখন তুমি বলো। शुरू करो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। अनार से आप लिख लो कि मुझे अनार बहुत पसंद है। मुझे अनार बहुत पसंद है। हाँ मुझे अनार बहुत पसंद है। हाँ आम দিয়ে কি করেছো বলো? हाँ 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब बहुत अच्छा है। इमली से क्या किया हो? वेरी गुड। ईक से क्या किया हो? ईक से ईक दीर्घी खा। ओके ओके ठीक है। अब ईक तो हाँ बोलो बोलो। ओके उन से ठीक है, ठीक है एकदम। ऋषि से क्या होगा? ओके
ओके ओके ओके ओके ओके। एक्का एक्का ठीक है। मैंने एक क्या देखा है, मैंने एक क्या कलकत्ता में देखा है, मैंने एक क्या कलकत्ता में देखा है, ऐसे लिख सकते हो। मैंने एक का बहुत बार देखा है, ऐसे लिख सकते हो। हाँ, मैंने एक क्या कलकत्ता में देखा है, या फिर मैंने एक का बहुत बार देखा है, ऐसे लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे। अच्छा ठीक है। एनक से बना पाए हो? एनक से? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ओल क्या होगा? हाँ हाँ, ठीक है, एकदम सही है। औरत? वेरी गुड। अंगूर? वेरी गुड। आहा, आहा से मैंने दो तो ऐसे शब्द बताए थे, प्रातः या अतः। आपने कुछ कर पाया है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बहुत अनुकूल होते, ठीक है, कोई बात नहीं है। बहुत ही सही है। जो आपने कर नहीं पाया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोल दिया है, आप लिख लो। और मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पे, आपने सुना था क्या? आपने सुना था? नहीं सर, मैंने दोबारा नहीं सुना था, क्योंकि मैंने सोचा था कि यही क्लास तो दोबारा आया है, इसलिए मैंने हाँ हाँ हाँ, दोबारा सुना है। ठीक है। अगर आपको तो सर आप डाउट होगा तो दोबारा जाके वही वीडियो दोबारा देख हाँ, लेंगे। दोबारा देख लेंगे। और कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे पूछ लेना है। मुझे ऐसे पूछना ज़रूर, क्योंकि पूछोगे नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। और वैसे आप तो शायद कुछ ही टाइम के लिए आप निकल गए थे मीटिंग से, तो मैं फिर से एक बार हाँ हाँ या हाँ, समझ में आया। कुछ ना कुछ तो दिक्कत ज़रूर होगा। आप ज़रा सुन लो, व्यंजन वर्ण मैंने बता दिया था, उसको सुन लो अच्छी तरह से। देखो, मैंने आज सुबह में आप लोगों को जो पीडीएफ भेजा था, उसी की दौरान उसी की अंदाज में मैं आज पढ़ा रहा हूँ। मैंने बोला भी था कि मैं वही आज पढ़ाऊँगा। देखो, क से क्या हो रहा है? क से हो रहा है कि कमल हो रहा है, कमल, कमल, कमल। तो कमल का मतलब बंगाल में क्या होता है? पद्म फूल, पद्म फूल। ঠিক আছে। अब খ से क्या हो रहा है? हाँ, তুমি এখন মাইকটা বন্ধ রাখো, তোমাকে কথা বলতে বললে তুমি বলবে। মাইকটা বন্ধ रखो। ओके। अब ख से क्या हो रहा है? ख से हो रहा है खाना, खाया का दंत न्या का खाना। तो खाना का मतलब क्या होता है? खाना का मतलब होता है खावा, खावा। ठीक है। अब गौ से क्या हो रहा है? गधा, गदा हयाकार, गधा। गधा का मतलब क्या है? बंगाल में बोला जाता है कि गाधा, गाधा। घ से हो रहा है घड़ी, घ डैशनरी दीर्घी, घड़ी। तो बांग्लातेও আমরা ঘড়ি বলে থাকি। ठीक है। घड़ी, घड़ी क्या होता है? घड़ी बहुत तरीके का होता है। हाथ में पहनने के लिए घड़ी होता है, ऐसे दीवार में ऐसे रखने के लिए भी घड़ी होता है। बहुत तरीके का घड़ी होता है वैसे। अब शंख, वहाँ से शंख हो रहा है, तलवस्सा वहाँ एक है शंख। तो ये वहाँ एक है जो है वो है संयुक्त व्यंजन, बाद में आएगा। दिक्कत ऐसे परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। संख्या का मतलब क्या है? बांग्लाয় যেটা আমরা বলি শাঁখ, শাঁখ আমরা পুজোতে ব্যবহার করি, মায়েরা বাজায় বা আমরা ছেলেরাও এখন পারি। तो देखो, चा, चा से क्या हो रहा है? चिल, चय दीर्घी लचिल। चिल क्या होता है? चिल, चिल पाखी। ठीक है, शिकारी पाखी हमारा जानी, तो शिकारी में वो माहिर होता है चिल। चा से हो गया छा। छ से क्या हो रहा है? छाता, छया करे तया का छाता। अब छाता बांग्लातेও छाता ही बोली, बंगाल में भी हम छाता ही कहते हैं। যেটা আমরা कि छाता का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? देखो, हर वक्त छाता का प्रयोग तो ऐसे बारिश हो जाए तो उस वक्त ही हम छाते को निकल कर बाहर निकलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं होता है। क्योंकि छाता का प्रयोग से बारिश से हमको बचाने के लिए ही नहीं है। जब धूप निकलता है, बहुत कड़ी धूप निकलता है, बाहर हम निकल रहे हैं, तो क्या होता है? लड़के या लड़की कोई भी हो जाए, हम क्या करते हैं? हाथे में एक छाता रख कर निकलते। इसलिए निकलते हैं क्योंकि भाई बाहर बहुत धूप निकल। अभी क्या हो रहा है? अभी का जो मौसम चल रहा है, सुबह के वक्त पर, सुबह से इतना भाई
सुबह से ऐसे गर्मी हो रहा है कि हमको अगर बाहर निकलना है, ऐसे सिचुएशन में भी हमको तो बाहर निकलना ही है, कभी कभार काम के वजह से छाता लेकर ही निकलना पड़ता है। तो गर्मी के लिए भी लगता है जैसे छाता, और बारिश के भी लिए भी लगता है। ठीक है, चलो देखो या से क्या हो रहा है, জাহাজ हो रहा है। জাহাজ क्या है, বাংলাতে আমরা জাহাজ বলি, জাহাজ তখন বাংলায় জাহাজ বললে একটা আবার একটা এক্সট্রা आकार चले আসবে बंगाल में बोलने से, लेकिन हिंदी में बोलने से जहा या वर्गज्जा आकार वर्गज्जा ऐसा होगा। ठीक है, अब झा से क्या होगा, झंडा, हाथलज्जा अनुस्वार डयका। तो ये झंडा क्या होता है, बांग्लाয় যাকে আমরা বলি पताका। झंडा का उत्तोलन कब होता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी। ठीक है, ऐसे दिनों में हम लोग झंडे का उत्तोलन करते हैं अपने घरों में, अपने विद्यालय में, अपने विश्वविद्यालय में, तेरे अपने जो आप लोग में जो क्लब का कोई मेंबर वगैरह हो अगर, तो उस जगह पर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में ऐसे झंडे का उत्तोलन उस वक्त होता है जब तिरंगा भी हम बोलते हैं उसको, झंडा के साथ साथ हम तिरंगा भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ से हमने हमारा जो यहाँ पर हमने आप लोगों को पिक्चर जो पोस्ट किया था वहाँ पर है यामासाई। अब यामासाई हम उनको बोल सकते हैं जो आदमी हम लोग देखते हैं ना, जो आदमी जो है रास्ते में हम जाते हैं तो अब हमको दिखना पड़ जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग हैं रास्ते में पड़े हुए कचरे डिब्बों का जो होता है ना, कचरे डिब्बे को एक ऐसे झोला में अपने झोले में ऐसे भर रहा है, तो झोले में भर कर क्या करेगा, उसको लेकर कहाँ पर जाएगा, तो उसके लिए उसको एक पैसा मिलता है जहाँ कर वो लेकर जाएगा। ठीक है ना, तो जो हम बोल सकते हैं कि जो सफाई कर्मी हम बोल सकते हैं, लेकिन उनको सफाई कर्मा वो एक अलग तरीके का काम करता है। ठीक है, वो रास्ते में पड़े हुए बोतल वगैरह छोटा मोटा जो चीज़ रहता है ना, वो रास्ते को भी परिष्कार करते हैं, उनको हम सफाई कर्मी बोल सकते हैं वैसे, मियाँ मसाई। ठीक है, अब ट से क्या हो रहा है, टब हो रहा है, टब। टब से क्या बोल सकते हैं, टब बोल सकते हैं जो हम क्या करते हैं अपने घर में क्या करते हैं, अपने घर में हम पौधा लगाते हैं, तो पौधा लगाने के दौरान हमको टब की ज़रूरत होती है। देखो अब जो है, अब हमारे ज़माने, हम जिस ज़माने में अभी खड़े हुए हैं, हम जिस ज़माने में अभी रह रहे हैं, इस ज़माने में क्या है, सिर्फ मिट्टी से बना हुआ ही टब नहीं मिलता है, अभी जो है फाइबर और प्लास्टिक से बना हुआ भी टब मिलने लगा है। अब अगर बाज़ार में जाओगे तो ऐसा बहुत सारे मिलेगा, क्योंकि सभी लोग जो है अपने घर के ऊपर अपने हिस्से में तो टब लगा देते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, घर के जो अंदर के जो ऐसे खिड़की वगैरह होता है ना, उसी के पास भी कुछ लोग रखते हैं। तो घर के अंदर रखने से उस दौरान घर के अंदर वो मिट्टी के बना हुआ टब नहीं रखते, और फाइबर और प्लास्टिक से बना हुआ जो मिलता है, अभी फाइबर का ही उसको प्लास्टिक नहीं कह सकते हम, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो टब बहुत तरीके का होता है। अब ठा से क्या होता है, ठेला। ठेला हमको कहाँ पर मिलेगा, अगर हम किसी भी गांव जाए, हमारे गांव जहाँ पर अभी भी ठेला का प्रयोग होता है, लोग उसमें बैठते भी, और ठेले में बैठने का मज़ा बहुत अलग से ही होता है। जैसे अभी भी गाय ठेला ऐसे लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ठेला है ना, वो ठेला क्या है, वो ठेले में सिर्फ जो बाहर बाद में जो पहले क्या होता था, पहले कुछ ठेला से कुछ लिया जा जाता था, कुछ ऐसे बहुत भारी चीज़ जैसे दिया जाए, तो उस दौरान हम ठेले का प्रयोग करते थे। अब डमरू, ड से क्या हो रहा है, डमरू हो रहा है। डमरू क्या करते हैं, जैसे हमने सुना है कि डमरू जो है डुगडुगी हम बांग्ला में बोल रहे हैं, लेकिन उसको डमरू का प्रयोग हमने सुना है कि शिव जब तांडव करते थे, हमारा जो संस्कृत में जो ऐसे जो 14 जब माहेश्वर सूत्र शिव सूत्र है, उस दौरान शिव ने डमरू बजाते हुए इस माहेश्वर सूत्र का प्रयोग किया था। संस्कृत में का जो छात्र छात्री है उनको पता है डमरू का मतलब, क्योंकि शिव सूत्र तो उनको जानना ही है और माहेश्वर सूत्र भी उनको जानना ही है, तो इसलिए डमरू का प्रयोग उस दौरान तो आता ही है। तो अब ढा से क्या होता है, ढोल। ढोल क्या है, ढोल हमें पूजा के दौरान उस पूजा के प्रांगण पे
ढोल को बजाने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ढोल का बजाना उस दौरान अनिवार्य होता है, तो ढोल ऐसा होता है। अब हा से क्या अब ना से क्या बोला, मध्यना से हम बोल रहे हैं कि हिरन, हैसी राम मध्यना, तो हैसी राम मध्यना से क्या हो रहा है, हिरन हो रहा है। तो हिरन से हम बोल सकते हैं कि भाई हिरन जो है हमारा बांग्ला हरिण बोली, बट हिंदी में क्या बोल सकते, हिरन, हैसी राम मध्यना, तो हिरन बोल सकते। अब त से क्या होगा, त से हो रहा है तरबूज, तारा व दीर्घु वर्गज्या, तरबूज। अब तरबूज क्या है, तरबूज हम खाते हैं, है ना। तरबूज बहुत गर्मी जब होता है ना, तब ऐसे तरबूज मिल जाता है। वैसे तरबूज खाने से वैसे दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि तरबूज ही ऐसा एक है, बहुत अच्छा लगता है। अभी ज़्यादा गर्मी आया नहीं है, वैसे अभी गर्मी का मौसम भी है नहीं, लेकिन तरबूज खाने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वैसे। अब देखो था से क्या है, थाली, थाली क्या है, थाली माने थाला, हमारा बांग्ला थाला बोली। अब बर्तन भी बोला जाता है उसको, बर्तन भी बोला जाता है हिंदी में ऐसे। थाली से क्या होता है, थाली से हम खाना खाते हैं, ठीक है। थाली में हम खाना, अन्न भी हो सकता है, ऐसे रोटी भी हो सकता है। थाली से हम ऐसे खाने खाने लायक जो है वो अन्न हो सकता है और रोटी हो सकता है। हम और भी जो खाना कुछ वगैरह होता है ना, वो ऐसे थाली में लेकर, मुरी बांग्ला जितना हमारा बोली मुरी, तो वो थाले में लेकर खाना बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए थाली से हम बोलेंगे कि अन्य, और हम रोटी जब खाते हैं तो थाली का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो दबार जो है, द से दबात बोल रहे हैं ना। पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में जब लोग लिखते थे अपने खाते में, जब हम लिखते थे, उस ज़माने में भी था। देखो उस ज़माने में काली बनाने के लिए, उस ज़माने में बहुत संग्राम, काली बनाने के लिए, और किस काली का हम किस रंग का प्रयोग करें, किससे लिखे, किससे लिखा जाए, इसके दौरान उस समय पर बहुत चर्चा थी। तो क्या है, उस दौरान जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े आदमी थे, उस दौरान वो क्या करते थे, उस दौरान वो क्या करते, दबात से जो निव बांग्ला जेटा का अपना नीब पेन बोली, तो उस निब पेन की मदद से वो लोग अपना लिखाई करते थे अपने खाते पे, ठीक है। तो दबात इसलिए कहते हैं, दबात में हम काली ऐसे रख देते, ठीक है, स्टॉक, ओके। तो अब जैसे हम घर में हमारा बहुत सारे चीज़ स्टॉक करके रखते हैं, ऐसे दबात में भी हम जो है काली को स्टॉक करके रखते थे। ये कि जब नीब पेन का जो लिखने से जो काली अगर ख़त्म हो जाए उसका, तब हम दबात से थोड़ा निकालने के लिए भी एक चीज़ था, हमको मालूम था, हमारे पास एक था लेकिन अभी गुम गया है, तो उससे हम काली थोड़ा निकाल के उसको दे देते थे कि ऐसे, तो ऐसे नीब पेन ऐसे चल जाता था। तो दबात हो गया। चलो हम धा पे आते हैं। धा पे क्या होता है, धा से हो रहा है धनुष हो रहा है, ठीक है, ध से धनुष। अब धनुष क्या है, धनुष है धनुक, बांग्ला जेटा बोले धनुक। अब धनुक का प्रयोग तो अभी होता नहीं है, वैसे अब होता नहीं है, नहीं बताऊँगा। अभी भी कुछ ऐसे संप्रदाय अभी भी जिंदा है जिनके पास ऐसे धनुक वगैरह है, धनुष वगैरह है, ठीक है, धनुष। ना से हम बोल रहे हैं नल, नाला नल। नल क्या होगा, नल से हम बोल सकते हैं कि अपना नलकूप बोलते पारी, बांग्लाয় नलकूप बोला যেতে পারে। अब प से बोल रहा है पतंग, प तनुस्वर का, प तनुस्वर, ग से क्या हो रहा है पतंग। अब पतंग থেকে আমরা ঘুড়ি বলবো, বাংলা এটাকে ঘুড়ি বলি, ঠিক আছে। अब फ से क्या हो रहा है, फल हो रहा है, फल। अब फल, फल क्या होगा, बांग्ला फल ही बोलबो, कोई दिक्कत नहीं है। फल बहुत तरीके का होता है। देखो हर आदमी का को सभी फल पसंद नहीं होता है, कुछ कुछ आदमी का बहुत सारे चीज़, जैसे मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी खाने के लिए दो फल तो मैं खा लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फल सभी को अच्छा नहीं लगता है, तो फल फल ही होता है। अब बकरी, बाकार बकरी, बकरी, बकरी हम बंगाल में हम छागल, तो बकरी बाकार दिगी। अब बकरी बहुत तरीके का होता है। बकरी जैसे हमारे यहाँ पर जो बकरी मिलता है वो अलग तरीके का है, लेकिन आप थोड़ा बाहर जाओगे तो बकरी बहुत तरीके का हमको देखने के ने मिला है। हम बाहर गए थे तो हमको देखने के लिए मिला था, अभी पिक्चर हमारे पास नहीं है और डिलीट हो गया है, तो हम बाहर घूमने के लिए गए थे तो हमको देखने के लिए मिला है। तो भालू है, जैसे भालू को तो हम ऐसे कहीं पर दिख नहीं सकते, हमको जाने के लिए हमको चिड़ियाखाना, हमको ज़ू में ऐसे जाना पड़ेगा, सभी लोग गए हैं वैसे, तो वहाँ पर भालू देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो भालू, भालू भाया का दीर्घ भालू होगा।
बांग्ला हमारा भाया कल्ला हस्सू लिखूँगा, बांग्ला में बंगाल में हम हस्सू होगा, लेकिन हिंदी में क्या है, हिंदी में उसका जो लिखने के समय पर इसका जो उच्चारण उसको दीर्घु हो जाएगा, दीर्घ स्वर में हो जाएगा। तो इसलिए हम भालू लिखेंगे, भाया कल्ला दीर्घु लिखेंगे, ठीक है। अब माँ से क्या हो रहा है, मछली, माछा लय दीर्घी। मछली क्या है, माछ, माछ, बांग्ला जगह हमारा बोली माछ व मत्स्यो, तो इसको हिंदी में बोल रहा है मछली, माछा लय दीर्घी मछली। अब यह से क्या हो रहा है, यज्ञ, उंजा वर्ग यज्ञ। यज्ञ क्या है, याग यज्ञ करना। याग यज्ञ का प्रयोग हम कम करते हैं, कब करते हैं, याग यज्ञ हम तब करते हैं जब हमारे घर में कोई दिक्कत आ गई है, या दिक्कत के समय पे, या फिर हमारे घर में कोई शुभ काम होने वाला है, तो उस दौरान हम याग यज्ञ करते हैं, ठीक है। अब रॉ से क्या है, रथ, रथ, जैसे रथ का प्रयोग तभी होता नहीं है, ठीक है। रथ का प्रयोग पुराने ज़माने में अगर हम महाभारत को देखेंगे तो महाभारत में रथ का प्रयोग हुआ था, तो उस दौरान हमको दिखने के लिए मिल जाएगा, रथ। अब देखो ला से लट्टू, ला टय हलंत तय दीर्घु, लट्टू, बांग्ला जाके बोलिए हमारा लाट्टू, लाटीम। अभी मिलता है दुकान में, अभी भी मिलता है दुकान में, कभी कभार दुकान में ऐसे ढूंढोगे तो लट्टू मिल ही जाता है दुकान में। बा से बक, बा का बक, बक बोलबो, बॉकी बोलबो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बंगाल में बक की बोला जाता है। मैंने भूल बोला था, स से सलगम को गाजर बोल दिया था, गाजर नहीं है, मूली है, ठीक है, वो गाजर नहीं है, सलगम को हम मूली कहते हैं, मूली कहते हैं, गाजर नहीं है वो, ठीक है। सलगम तलवसलगमा, ठीक है, तो सलगम होगा। अब स से सलगम तो हो गया भाई। स से जो सटकन हमने बोला, मध्यन सा टहलंत का ओ का मध्यना, तो उसका जो हम बंगाल में अगर बोलेंगे तो बंगाल में इसको हम बोलेंगे कि सरहूज, ठीक है। अब दंत स से हम बोल रहे हैं सपेरा, दंत स पै का रहेगा सपेरा। सपेरा हम किसको कहते हैं, जो सांप को कैद कर सकता है, जो सांप का ऐसे सांप से लेकर खेला दिखाता है, ऐसा खेल दिखाता है हम लोगों को, ऐसा मनोरंजन करने के लिए, तो उसको हम सपेरा कह सकते हैं, ठीक है। ह से हाथी बोलेंगे, है का थे दीर्घ हाथी, एलिफेंट ओके, हाथी वाला है, हाथी हमारा बंगला में बोलते हैं हाथी व्यस्त, तो हिंदी में हाथी बुलाते हैं, है का थे दीर्घी। अक्षियाँ जो है एक संयुक्त व्यंजन है, लेकिन हमको बोलना है, क्या करें हम, ख से क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय का परम धर्म जो होता है वो है युद्ध करना, युद्ध करना ही उसका परम धर्म है, और युद्ध करके ही उनको प्रजा का रक्षा भी करना है, ठीक है। अब देखो तैराफला से क्या है, तैराफला से है त्रिभुज, तैराफला से भैंसु वर्ग। त्रिभुज हम किसको बोलते, जहाँ पर तीनों बाहु समान होता है उसको हम त्रिभुज ऐसे बोला जाता है, ट्रायंगल इंग्लिश में बोला जाता है त्रिभुज, बांग्ला त्रिभुज। न्याय से क्या है, ज्ञानी क्या है, जो इंसान बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानता है, ऐसे सिर्फ अपने विषय में जानने से नहीं होता है, बहुत सारे विषय के बारे में उनको मालूम है, उसको हम ज्ञानी, नॉलेजेबल पर्सन हम उसको बोल सकते हैं। ला से डैसनर से हम बोल रहे हैं लोमड़ी को हम निकरेबाग बोल सकते हैं, लोमड़ी लयो का मा डैसनर से लोमड़ी हम बोल देंगे। और ढैसनर से मेरक, मैं का ढैसनड़ा का, तो मेरक क्या होगा, बैंग होगा, बैंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अब का से ढैसनड़ा तक देखो एक सीरियल में आकर आपको पढ़ना है, व्यंजन वर्ण भी लिखना जब होगा ना एक से सीरियल में, का खा गा घा वहाँ, चाचा वर्ग झैया, टाठा डाड़ा मध्यना, ताथा दादा दंतना, पापा बाबा माँ, यारा लावा में ख़त्म हो गया। अब सा सौ को एक साथ बोलना है, सा साहा। अब खिया तरफला बरगजैया तलवस्सा रफला, ये चार जो है ये संयुक्त व्यंजन है, और ढैसुनरा को भी हम व्यंजन में ही रखते हैं। तो इसी से साथ आज का पाठ ये पर ख़त्म होता है। प्रियंका रिंटू का कोई समस्या है, इसलिए वो अभी कोई दिक्कत है क्या, কোনো সমস্যা আছে, বুঝতে পারা গেছে? আমাকে স্যার তরকারি হিন্দি কি হবে, তরকারি ऐसे बोल सकते, তরকারি का মাছলি বললে না, আমি বলতে চাইছি মাছের তরকারি আমার খুব ভালো লাগে, আমি এই জন্য বললাম যে মুঝে মাছলি কা আর তরকারি কি হবে, তরকারি আমরা मुझे मछली के वना खाना मुझे मछली के वाना
মাছলি সে বানা খানা, तरकारीर ওইভাবে কোনো রকম কিছু নেই, तो मछली के बना खाना मुझे बहुत पसंद है। मछली से देखो, जो खाना आपको पसंद है उसको हम बना किससे रहे हैं, मछली से बना रहे हैं, तो मछली से बना जो खाना होता है उसको हमें पसंद है, तो मछली का बना हुआ खाना मुझे बहुत पसंद है। देखो मछली से तो बहुत सारे चीज़ बनते हैं ना, देखो মাছে মরি ঘন্ট, তারপর মাছের ঝোল, মাছের ঝাল, মাছ ভাজা, তাই না? তো এই মাছের দিয়ে আমরা যে বড় মাছের যে কাঁটা দিয়ে আমরা শাকের তরকারি এইসব বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, এবার মাছের সমস্ত রকম তরকারি ভালো লাগে, তো সেক্ষেত্রে मुझे मछली से बने हुए हर खाने को बहुत पसंद है, ऐसे लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है, তরকারি ফরকারি এর মধ্যে আনা দরকার নেই। ঠিক আছে, আর কিছু জানার আছে বল? আচ্ছা, তাহলে একটা কাজ করবি, যে জিনিসগুলো আছে আর সকালে যেটা পাঠিয়েছিলাম সেটা বোঝা গেছে বাবার সম্বন্ধে, সুবা মানে যে ভেজা था ওটা বোঝা গেছে তো? ও পাঠিয়েছি, ঠিক আছে, এগুলোই করছিলাম, ওটা দেখা হয়নি, ওকে দেখবো রাত্রিবেলা ওকে করবো ওটা। ওকে, নো প্রবলেম। তো নেক্সট উইকেন্ডে এইগুলো দিয়ে শব্দ বা বাক্য গঠন করার চেষ্টা করবে। তো তোমাকে এইটা পাঠিয়ে দেবো তো, আজকে যেগুলো লিখলাম। হ্যাঁ, ইটস ওকে, ওটা তুই পাঠিয়ে দিবি, আমি পরে দেখে নেবো, চেক করে নেবো। আর আমি তো ভিডিও দিয়ে দিচ্ছি, আমি তো ডাউনলোড দিয়ে দেবো, দেন আমি দিয়ে দেবো, যতবার খুশি দেখিস। আর আগের ভিডিও দেখার সময় হয়েছিল? দেখা হয়নি তো? দেখেছিলি আগের ভিডিওটা? হ্যাঁ আমি দেখেছিলাম, দেখছিলাম। ओके 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 ओके, अगर किसी भी जगह पर कोई भी दिक्कत होगा तो কালকে ক্লাসটা হলো, দেখছিলাম। ওকে 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 ওকে, বোঝা যাচ্ছে কি? বোঝা যাচ্ছে তো? বোঝা যাচ্ছে তো সব? বোঝা যাচ্ছে তো? समझ में आ रहा है ना? বুঝতে বলছি বোঝা যাচ্ছে সব? ভিডিও বোঝা যাচ্ছে তো? ভিডিও থেকে বোঝা যাচ্ছে? বেশ বেশ বেশ, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। বেশ, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। বেশ বেশ বেশ, বুঝতে পেরেছি। আমি আপলোড করে আমি আজকে দিয়ে দিচ্ছি রাত্রে, পরে দেখে নিস, কোনো সমস্যা হলে বলবি। আর এই সমস্ত ব্যঞ্জন বর্ণের যে শব্দ, ব্যঞ্জন বর্ণ से जो शब्द है उस सभी से মানে সমস্ত শব্দ দিয়েই শব্দ বাক্য বানাने में कोशिश करना, क्यों वाक्य बनाना है। हाँ 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 हाँ, ব্যঞ্জন বর্ণ, ঠিক আছে? ওকে ওকে, চল, ঠিক আছে, গুড নাইট। এখন কোনো ব্যাপার না, আমি মিটিং ছেড়ে দিচ্ছি, আমি ডাউনলোড, ঠিক আছে? ওকে 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 ওকে, নো প্রবলেম, ওকে। Today stop this discussions will be continue next week Friday. Okay, bye bye, take care, good night.